हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी। हम कर रहे हैं गाइटन से यूनिट नंबर 14 चैप्टर 76 आज करेंगे, विच इज़ अबाउट पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड देयर कंट्रोल्स बाय हाइपोथैलेमस। सो बेसिकली पिट्यूटरी, उससे निकलने वाले डिफरेंट हार्मोन्स और कैसे हाइपोथैलेमस इंटरेक्ट करता है पिट्यूटरी को। एक्चुअली हम मतलब किसी ज़माने में कहते थे, अब भी कहते हैं कि पिट्यूटरी इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बिकॉज एक्चुअली इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। और वो जो हार्मोन्स हैं दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग मैनी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए कहते हैं इज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज ये इसमें से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो जाके थायराइड के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, जो जाके किसी और एंडोक्राइन ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली पिट्यूटरी कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सो मैनी अदर एंडोक्राइन ऑर्गन्स, लेकिन खुद पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाला ये बैठा है। सो दिस इज एक्चुअली द सुपर मास्टर ग्लैंड और ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशन टू हाइपोथैलेमस। सो पहली हेडिंग है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स रिलेशन टू द हाइपोथैलेमस। तो यहाँ थोड़ी सी एनाटमी की बात होगी, ऑल्दो एनाटमी मैंने ऑलरेडी कराई हुई है, हिस्टोलॉजी भी कराई हुई है, लेकिन यहाँ जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड एनाटमी है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स रिलेशन टू द हाइपोथैलेमस। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी। आपको पता है कि जो पिट्यूटरी है ह्यूमंस में इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और बीच में उसके पार्ट्स इंटरमीडिया होता है। सो इफ यू लुक एट द डायग्राम स्ट्रेट अवे, here you see that's the anterior portion of the pituitary, that's the posterior portion of the pituitary, and the intervening part is called the pars intermedia. Okay, now the pituitary gland, also known as the hypophysis, this is the other name for pituitary gland. Okay, it's a very small gland. Kitna small? Only about 1 centimeter. So imagine it's a very small gland in diameter, and weight wise is also very small, 0.5 to 1 gram. Such a small gland of your body but controls many functions. Okay, and it lies एक bony structure ऐसे होता है cella turcica, एक bony cavity है at the base of the brain. The pituitary gland is also connected with hypothalamus by a pituitary stalk. So if you again look at the diagram here, this is the pituitary stalk, that is the stalk, and by the stalk it is connected to this hypothalamus, right? So these are all important considerations to remember because ये जो पिट्यूटरी स्टॉक है इसमें से हाइपोथैलेमस में निकलने वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो उनके एक्सॉन्स एक्चुअली ट्रैवल करेंगे. ओके, नाउ physiologically the pituitary is divisible into two distinct portions, anterior pituitary also known as adenohypophysis and posterior pituitary also known as neurohypophysis. Now between these portions is a very small intermediate zone which is known as pars intermedia. तो anterior pituitary, posterior pituitary और बीच में क्या मौजूद है? pars intermedia. Okay, अब ये जो anterior और posterior pituitary है, embryologically these are two different origin type of organs. जो anterior pituitary है it is developed from the Radke's pouch जो कि embryologic invagination होती है pharyngeal epithelium की, और जो posterior pituitary है it actually emerges as an outgrowth from the hypothalamus. तो posterior pituitary actually neural origin का है because it comes out from the hypothalamus, and जो anterior pituitary है it comes out from the pharyngeal epithelium. So kind of it is connected more with the GI tract perhaps. Okay, the origin of the anterior pituitary from the pharyngeal epithelium explained the epithelioid nature of its cells, and the origin of the posterior pituitary from the neural tissue explains why these are more composed of glial cells. So because it is neural origin, so neural cells are more there, and because the anterior pituitary is more from the pharyngeal epithelium, so epithelial structures and epithelial cells are more common in the anterior pituitary. Ab 6 major peptide hormones plus several other hormones of lesser known importance are secreted by the anterior pituitary. So 6 major hormone है जो निकल रहा है, ठीक है, and 2 important peptide hormones are secreted from the posterior pituitary. So this, इसको याद रखने का एक तरीका ये भी देखें, anterior pituitary is a little bigger, so 6 hormones from there and 2 hormones from there. So total you have around 8 major known hormones, और बहुत सारे निकलते हैं. 6 hormones कौन कौन से हैं? Growth hormone, A adrenocorticotropic hormone, which we call also ACTNH. Okay, thyroid stimulating hormone, so it's gonna go and stimulate thyroid gland. Okay, then prolactin, it promotes mammary gland development, and 2 separate gonadotropin called FSH, follicle stimulating hormone, and luteinizing hormone LH, they are also released from the anterior pituitary. So ये 6 आपको लाजमी याद होने चाहिए: the growth hormone, ACTH, thyroid stimulating hormone, prolactin, and FSH and LH combined together. So 5 and 6 basically.
तो ये आपको नाम अगर भूल गए तो समझो फिर गड़बड़ है, ये लाजमी याद होने चाहिए। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो दो हार्मोन्स निकलते हैं, दीज आर एंटी डायरेटिक एंड ऑक्सीटोसिन। एंटी डायरेटिक तो नाम से जाहिर है कि ये डायूरेसिस को रोकेगा, सो किडनी से जो यूरिन निकलती है उसको रोकेगा, एंटी डायूरेसिस। सो इट विल एक्चुअली manages the water content of the body. So if it stops urine from getting out of the body, it helps the body to reabsorb more and more water. और oxytocin का क्या काम है? Expresses milk from the gland. So it is the contraction of the mammary ducts and getting out of the milk. That is one thing. And the other thing is going on to the uterus and causing contraction of the uterus to cause delivery. So अगर ये uterus है और इसमें there is a baby down there, तो यूट्रस की जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो बेबी इज पुश्ड आउट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑक्सीटोसिन। बाकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स उनके नाम से आपको पता लग रहा है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाएगा। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन is basically it is going to go and work on the adrenal gland. That's why it's adrenocorticotropic hormone. Thyroid is going to work on the thyroid gland, है ना? Prolactin is going to work on the mammary gland. So नाम से सब चीज़ें जाहिर है। The anterior pituitary gland contains several different types of cells. अब ये जो 6 मेजर हार्मोन्स मैंने आपको बताया एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये सब अलग अलग तरह के सेल्स में से निकलते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं। जो ग्रोथ हार्मोन है दैट इज रिलीज फ्रॉम द सेल्स विच आर कॉल्ड सोमैटोट्रॉफ्स। फिर जो ACTH है वो जिन सेल से निकलता है दे आर कॉल्ड कॉर्टिकोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स, गोनेडोट्रॉफ रिलीज LH and FSH, एंड लेक्टोट्रॉफ्स रिलीजिंग प्रोलैक्टिन। सो ट्राई इमेजिन कि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसमें थायरोट्रॉप्स भी हैं, इसमें फ्लानाट्रॉप्स भी हैं, ये ट्रॉप वो ट्रॉप, अलग अलग तरह के सेल्स हैं। और हर सेल में से जो थायरोट्रॉप है वो थायराइड से रिलेटेड हार्मोन निकालेगा ऑब्वियसली, है ना? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हर सेल, और यहाँ एक डायग्राम भी बड़ी अच्छी बनाई हुई है। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, वेयर आर यू, मैं जब ढूंढता हूँ नहीं मिलती ये वाली डायग्राम। सो दैट इज शोइंग यू कार्टून। एक्चुअली ये रियल डायग्राम नहीं है, बट दैट इज शोइंग यू अ कार्टून which is nicely actually representing section of the anterior pituitary. अब इसमें देखें कितने तरह के cells हैं. There are these alpha cells, there are epsilon acidophilic cells, delta basophilic cells. अलग अलग तरह के cells हैं जो अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं. So either you classify them as being acidophil, basophil, or epsilon cells, gamma cells, or you identify them as by their names. Somatotrophs releasing growth hormone, corticotroph releasing ACTH. ये मैंने बहुत डिटेल में हिस्टोलॉजी में सारी चीज़ें पढ़ाई हैं. सो प्लीज़ गो एंड वॉच माई लेक्चर्स फ्रॉम इंदरबीर सिंह. ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. Now 30 to 40% of the anterior pituitary cells are somatotrophs. So it's a major chunk. 30 to 40% of the all anterior cells are somatotrophs, which are associated with the release of growth hormone. And about 20% are corticotrophs. So इन दोनों को अगर मिला लें तो roughly 60% तो आपकी यही दो cells हैं, corticotroph and somatotrophs. Each of the other cell type account for 3 to 5%. So that should make sense. Somatotroph stain strongly with acidic dyes and are therefore called acidophils. यानी यहाँ ये जो acidophil cells हैं, these are basically the somatotrophs because they stain very nice with the acidic dyes. Therefore, the pituitary tumors that secrete large quantities of human growth hormone are called acidophilic tumor because they are released. The growth hormone is released by the acidophilic cells. तो अगर उन cells में tumor growth होगी, so that is called acidophilic tumor. Posterior pituitary के जो hormones हैं, they are synthesized in the cell bodies in the hypothalamus. That's an interesting concept. ये देखें, ये posterior pituitary है. So you have to understand कि anterior pituitary में जो हार्मोन बनते हैं वो यहाँ different तरह के cells मौजूद हैं. उन सेल्स में वो हार्मोन बनते हैं और ब्लड में एंटर होते हैं. जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की स्टोरी ऐसी है कि ये हाइपोथैलेमस में सेल बॉडी होगी और स्टॉक से होता हुआ उसका एक्सॉन आएगा और यहाँ ये जो न्यूरॉन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अपना हार्मोन रिलीज करेगा. सो दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. ओके, तो द सेल बॉडीज ऑफ द सेल्स दैट सिक्रीट पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आर नॉट लोकेटेड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड बट देयर सेल बॉडीज आर प्रेजेंट एक्चुअली इन द हाइपोथैलेमस. ओके. And these are very, very large neurons because they travel up from the hypothalamus down to the posterior pituitary. The hormones are then transferred in the exoplasm through the nerve fiber and they are released into the posterior pituitary gland. जो मैंने आपको यहाँ मैकेनिज्म समझाया. सेल बॉडीज यहाँ है तो इस सेल बॉडी में सिंथेसाइज होगा हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस में है और वो हार्मोन नीचे ट्रैवल करके यहाँ रिलीज होगा. तो दो अलग अलग मैकेनिज्म्स आप देख रहे हैं. हेयर इन द एंटीरियर पिट्यूटरी वी हैव द सेल्स व्हिच रिलीज द हार्मोन एंड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी दे आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड देन कम डाउन इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ओके.
Also, this is an important diagram which is actually showing you कि what are the functions of anterior pituitary hormone. ये 6 anterior pituitary से major जो hormone निकलते हैं. This is anterior pituitary. Growth hormone obviously causing growth. Thyrotropin going and working on the thyroid gland. Corticotropins, ACTH, going to work on adrenal cortex particularly. Then we have follicle and luteinizing. Both these go onto the ovary. Prolactin goes for milk production. So all these are actually representing what are different jobs of anterior pituitary. So pretty important hormone if you look at it as far as the spectrum is concerned, because it covers, many parts of your body. So that's an important one, okay? अच्छा, अब ये जो हेडिंग है that is something जो अभी हमने थोड़ी सा डिस्कस किया था, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि hypothalamus controls the pituitary secretion. तो ये जो पिट्यूटरी हीरो बना फिरता है ना कि इसके एंट्री पिट्यूटरी से 6 चीज़ें निकल रही हैं, पोस्टीरियर से 2 निकल रही हैं. सो ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है समझना कि इस हीरो को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस असल हीरो है. ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल पिट्यूटरी सिक्रीशंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोनल और नर्वस सिग्नल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. इंडीड, when the pituitary gland is removed from its normal position beneath the hypothalamus and transplanted to some other part of the body, its secretion rate of the different hormones fall to very very low. बिकॉज अकेला पिट्यूटरी काफ़ी नहीं है, इसको ऊपर से हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा तब ये काम करेगा. ओके, तो सिक्रीशन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय द नर्व सिग्नल्स दैट ओरिजिनेट इन द हाइपोथैलेमस. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो पूरे का पूरा है ही कंट्रोल में किसके, हाइपोथैलेमस के, बिकॉज वही न्यूरॉन्स जो हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स बनाते हैं. तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं. अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी में सिस्टम डिफरेंट है. एंटीरियर पिट्यूटरी में मैंने आपको कई दफ़ा बता दी ये बात अब कि यहाँ डिफरेंट तरह के सेल्स हैं जिनमें से सिक्रीशंस निकल रही हैं, लेकिन ये जो सेल्स हैं दे आर ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. कैसे वो भी देखते हैं. नाउ इन कॉन्ट्रास्ट द सिक्रीशन बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड हाइपोथैलेमिक इनहिबिटिंग हार्मोन. सो ऊपर हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होगा, नीचे पूरा पिट्यूटरी जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी की हम बात कर रहे हैं इस वक्त. नाउ द फिगर शोज to the anterior pituitary through the minute blood vessel called the, ये एक टर्म आपने याद रखनी है, ये हमने एनाटॉमी करवा रहा था तब भी बताई थी मैंने आपको. हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता बेसिकली ये है. लेट मी लुक एट शो यू द डायग्राम. सो दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस हाइपोथैलेमस हैज़ डिफरेंट न्यूरॉन्स, और उन न्यूरॉन्स में जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो यहाँ कैपिलरी सिस्टम में जो कि स्टॉक में मौजूद है, पिट्यूटरी स्टॉक में, उसमें वो केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो फिर ट्रैवल करके आते हैं इस दूसरे कैपिलरी नेटवर्क में. एंड दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज अ पोर्टल सिस्टम, बिकॉज देयर आर 2 कैपिलरी नेटवर्क्स. तो बना हाइपोथैलेमस में चीज़ आकर के रिलीज हो गई कैपिलरी सिस्टम ऑफ दिस ब्लड वैस्कुलर बेड, और वो सब्सटेंस पे ट्रैवल करेगा डाउन इनटू दिस कैपिलरी सिस्टम एंड इट विल बी रिलीज्ड इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी. और अब वो हार्मोन आकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को बताएगा कि भाई तूने ये वाला सेल बनाना है. तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, ये आपको ऊपर से कंट्रोल है, ये बात याद रखनी है, ठीक है. और ये सारे ब्लड सप्लाई सिस्टम को कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल सिस्टम. The hypothalamus receives signals from many other sources in the nervous system. Thus, when a person is exposed to pain, for example, a portion of pain signal is transmitted to the hypothalamus. Likewise, when a person experiences some powerful depression or exciting event, so वो कहते हैं ना खुश रहें, आपके हार्मोनल स्टेटस ठीक रहेंगे, उसकी रीज़न ये है क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द हायर सेंटर्स. सो इमोशंस ऑफ पेन और निगलेक्ट और डिप्रेशन और एग्जाइटी और हैप्पीनेस दैट अफेक्ट द रिलीज ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. और जब हाइपोथैलेमस से उन हार्मोन्स की अमाउंट बढ़ेगी या कम होगी तो ज़ाहिर है एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी फ़र्क पड़ेगा. दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये सारा सिस्टम जो है दैट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन हाइपोथैलेमस. ओके, now even the concentrations of nutrients, electrolytes, water and various hormones in the blood can also excite or inhibit various portion of the hypothalamus. So hypothalamus control कर रहा है पिट्यूटरी को, और खुद हाइपोथैलेमस को हायर सेंटर्स, स्पेशल सेंसेस, ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रही है. सो देयर इज़ अ वेरी वेल कंट्रोलिंग सिस्टम इन द बॉडी. ओके, नाउ हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, इस पर भी थोड़ी बात की दोबारा बताता हूँ कि द एंटीरियर पिट्यूटरी इज़ अ हाईली वैस्कुलर ग्लैंड with extensive capillary sinuses among the glandular cells. So if you look here, these are all the capillary networks. Okay, so all these capillary networks are surrounding this anterior pituitary. That's why we say कि जो anterior pituitary है, it is highly vascular. बहुत blood vessels हैं. Almost all the blood that enters these sinuses passes first through another capillary bed which is present in the lower hypothalamus. So ये hypothalamus के बिल्कुल नज़दीक है.
द ब्लड देन फ्लोज थ्रू द हाइपोथैलेमिक हाइपोपोटल वेसल सिस्टम। जो सारी बात मैंने ऑलरेडी बताई कि यहाँ सब्सटेंसेस बनेंगे हाइपोथैलेमस में, they will be released into these capillaries, which are the primary capillary plexus, travel down into the sinuses or the capillary network of the anterior pituitary. Okay, so ये system बड़ा important है because it transports substances from the hypothalamus to the anterior pituitary. अब hypothalamus में there are releasing or inhibitory hormones. They are secreted into the median eminence. Median eminence क्या चीज़ है? देखें, ये हाइपोथैलेमस का जो लोअर मोस्ट पोर्शन है, दैट इज व्हाट वी कॉल द मीडियन एमिनेंस, दैट पार्ट, ओके, जो कि स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक के साथ कंटिन्यूअस है. सो स्पेशल न्यूरॉन्स इन द हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज एंड सिक्रीट हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स that control the secretion of anterior pituitary hormones. These neurons originate in various parts of the hypothalamus and send their nerve fibers to the median eminence and tuber cinereum. So that bit की हम basically बात कर रहे हैं, which is the lowermost part of the hypothalamus, and it is connected with the connecting stalk. Now the endings of these fibers are different from most endings, so let alone this one, I want to now show you, for example, this table. ये देखें, एक हार्मोन है जिसका नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये क्या करता है? ये थायरोट्रॉप्स पे जाके एक्शन करता है और उसे कहता है कि TSH निकालो. सो ज़रा सिस्टम इमेजिन करने की कोशिश करें. नाउ दिस इज़ अ गुड डायग्राम टू डिस्कस ऑल दिस. मैं आपको एक तो कम से कम डिटेल में समझाऊंगा ताकि बाकी आपको समझ में आ जाए. नाउ दिस इज हाइपोथैलेमस, एंड इन द हाइपोथैलेमस विल बी प्रोड्यूस्ड दिस पर्टिकुलर हार्मोन विच इज कॉल्ड TRH, नॉट TSH, TRH, थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन. ओके, अब ये जो थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन है ये यहाँ बनेगा और रिलीज होगा इस कैपिलरी नेटवर्क में, और ये TRH ट्रेवल करके यहाँ नीचे आएगा. अब यहाँ नीचे एक सेल मौजूद है. नीचे से मतलब क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी में ये सेल मौजूद है जिनका नाम है थायरोट्रॉप्स. थायरोट्रॉप्स का काम होता है TSH रिलीज करना. तो थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से ट्रेवल करके इन सेल्स के पास आएगा और इन सेल्स को कहेगा भाई तुम TSH निकालो, और फिर ये TSH जाएगा और थायरॉइड ग्लैंड पर एक्चुअली अपना एक्शन करेगा. तो ये TSH निकलेगा या नहीं ये कौन तय करेगा? TRH तय करेगा. सो इसलिए हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली द मास्टर रेगुलेटर. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हाइपोथैलेमस इज रिलीजिंग a releasing hormone which goes and act on the thyrotropes to release TSH. बिल्कुल ऐसे ही there is a gonadotropin releasing hormone which is released from the hypothalamus and goes and work on the gonadotropes to secrete FSH and LH. तो FSH और LH कहाँ से निकल रहा है? From the anterior pituitary. लेकिन किसके इन्फ्लुएंस में निकल रहा है? GnRH के इन्फ्लुएंस में निकल रहा है. Then corticotropin releasing hormone goes to work on corticotropes to secrete ACTH. And then there are some inhibitory hormones also in the hypothalamus. So hypothalamus में बना ये prolactin inhibiting hormone, it goes and work on the lactotrope to inhibit the secretion of prolactin. And similarly, there is also a growth hormone inhibitory hormone and growth hormone releasing hormone. So the point is कि इस hypothalamus में master chemicals हैं, either corticotropin releasing hormone or growth hormone releasing hormone or gonadotropin releasing hormone or prolactin inhibitory hormone. जो भी यहाँ सब्सटेंस बनेगा रिलीजिंग या इनहिबिटरी, वो कमांड देगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके कि भाई अब तुम भी अपनी सब्सटेंसेस रिलीज करो. तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी यू नीड टू रिमेंबर. एक और कॉलम मैंने यहाँ मिस किया और वो इम्पॉर्टेंट है. वो कॉलम है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन्स. ये सब हार्मोन्स है ना. दीज आर ऑल द हार्मोन्स विच आर रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड दीज आर ऑल द हार्मोन्स विच आर रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी. तो हाइपोथैलेमस में से ही निकल के कंट्रोल किसको कर रहा है? पिट्यूटरी पर. अब मेरा आपसे एक सवाल है. सवाल ये है कि सपोज ये है हाइपोथैलेमस और ये है एंटीरियर पिट्यूटरी. इस हाइपोथैलेमस से निकल के आया TRH. क्या है हार्मोन का नाम? थायरॉइड रिलीजिंग थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये जाके यहाँ किन सेल्स पे काम करेगा? थायरोट्रॉप्स पे काम करेगा, और थायरोट्रॉप्स क्या निकालेंगे? TSH, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. माय क्वेश्चन टू यू इज कि ये जो थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से निकला, ये सेल्स थायरोट्रॉप्स पे जाके एक्शन करेगा. कैसा एक्शन करेगा? क्या ये रिसेप्टर पे बाइंड होगा या डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा और न्यूक्लियस पे जाके बाइंड करेगा? सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन? दैट इज माय क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन है ये किस तरह का हार्मोन है. क्या ये प्रोटीन हार्मोन है? क्या ये अमाइनो एसिड है? क्या ये लिपिड बेस्ड हार्मोन है? सो हियर इट इज रिटन इट इज अ पेप्टाइड.
अब आपको पता है कि पेप्टाइड की सिग्नल ट्रांजैक्शन कैसे होती है, पेप्टाइड कैसे काम करते हैं। गो बैक एंड वॉच चैप्टर नंबर 75 वीडियो। इससे पहले वाला जो चैप्टर है एंडोक्राइन का इंट्रोडक्टरी चैप्टर, वो चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपको ये पता होगा कि किस तरह का प्रोटीन किस तरह के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, लिपिड्स कैसे सेल के अंदर चले जाते हैं और साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। सो बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑल दीज प्रोटीन्स आर हिडन इन माय प्रीवियस वीडियो व्हिच इज चैप्टर नंबर 75। तो वो वीडियो देख के आओ यार, ताकि ये समझ में आए बात। ओके हाँ चलिए अब आगे चलो यार। अच्छा खासा लंबा चैप्टर है ये। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन्स कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन, ये बात हमने कर ली। और टीआरएच का मैंने आपको बताया कि वो टीएसएच रिलीज करवाएगा, सीआरएच का बताया वो एसीटीएच रिलीज करवाएगा। सो टीआरएच और सीआरएच कहाँ से निकल रहे हैं? फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और वो आकर एंटीरियर पिट्यूटरी पे। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन, दीज आर ऑल रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये बात हम डिटेल में कर चुके हैं इस टेबल के साथ साथ। Okay, now specific areas in the hypothalamus control secretion of specific hypothalamic releasing and inhibitory hormones. All or most of the hypothalamic hormones are secreted at the nerve endings in the median eminence. यानी इस डायग्राम को आप याद रखें, हाइपोथैलेमस में जो चीज़ बनती है ना, वो यहाँ आकर के डिलीवर होती है इस पोर्टल सिस्टम के अंदर। यानी इस एरिया को हम नाम देते हैं मीडियन एमिनेंस। सो दे आर रिलीज्ड इनटू द मीडियन एमिनेंस एरिया। ठीक हो गई बात। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ दिस रीजन एक्साइट्स दीज, ना ये अभी एक्सपेरिमेंटल बात है। तो ये सारा हो गया। एक टेबल यार और था ये वाला, ये मुझे डिस्कस करना है। इस टेबल में बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से सेल्स हैं, उन सेल्स में से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, और उन हार्मोन का स्ट्रक्चर क्या है और वो क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में एक सेल टाइप है सोमेटोट्रॉप, दूसरा कॉर्टिकोट्रॉप, थायरोट्रॉप, गोनेटोट्रॉप, लेक्टोट्रॉप, और इनमें से निकलने वाले हार्मोन। सो सोमेटोट्रॉप रिलीज ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉप रिलीज एसीटीएच, थायरोट्रॉप रिलीज टीएसएच, गोनेटोट्रॉप रिलीज एफएसएच एंड एलएच, लेक्टोट्रॉप्स रिलीज प्रोलैक्टिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन और अमाइनो एसिड्स, इतनी बड़ी पेप्टाइड चेन कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। वीडियो मेरी चैप्टर नंबर 75 की, इसी यूनिट की, एंडोक्राइन का इंट्रोडक्शन, वो वीडियो देख लो तो पता चल जाएगा कि कौन सा हार्मोन कैसे काम करता है। एंड देयर फंक्शंस आर काइंड ऑफ यू नो दोज। सो ग्रोथ हार्मोन फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली स्टिमुलेट बॉडी ग्रोथ, और डिटेल्स आप ये देख सकते हैं क्योंकि ये हम अभी पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में। सो दैट्स वाई। बट ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट तरह के सेल्स पता चल रहा है जो एंटीरियर पिट्यूटरी में है और उनसे क्या निकलता है। अब ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर ये सोमेटोट्रॉफ है जो ग्रोथ हार्मोन निकालेगा, तो ये सोमेटोट्रॉफ को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस से कौन आएगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से बोलेगा भाई निकाल ग्रोथ हार्मोन। लेकिन अगर हार्मोन ये वाला निकला हाइपोथैलेमस से, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन, तो फिर ये ग्रोथ हार्मोन इनिबिट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो असल मास्टर रेगुलेटर इन सेल्स के ऊपर बैठा हुआ है और वो है हाइपोथैलेमस, राइट। चलो अब अगली हेडिंग डिस्कस करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। पर्टिकुलरली इन्होंने पिक किया है कि ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। नाउ ऑल द मेजर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स एक्सेप्ट फॉर ग्रोथ हार्मोन exert their principal effects mainly by stimulating target glands including the thyroid gland, adrenal cortex, ovaries, testicle, mammary gland। यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल TSH की बात करें तो उसने जाना है और किस पर काम करना है? थायरॉइड पर। इसी तरह अगर आप एड्रिनल ACTH की बात करें, सो इट्स गोना वर्क ऑन दी एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इसीलिए जब हम वो वाले ग्लैंड्स पढ़ेंगे, यानी जब थायरॉइड ग्लैंड पढ़ेंगे, तब वी विल सी कि हाउ डज TSH वर्क, बिकॉज इसने अल्टीमेटली जाना है और एक्शन करना है थायरॉइड पर। लेकिन सिर्फ एक ग्रोथ हार्मोन ऐसा है जिसने एक्चुअली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे काम करना है। सो दैट्स द वन जिसका कोई एक टारगेट ऑर्गन नहीं है। इट गोज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ग्रोथ हार्मोन पे यहाँ इन्होंने एम्फेसिस दिया है। मतलब आप ये सोचेंगे जब ये पूरा चैप्टर कर लेंगे तो यार इन्होंने ग्रोथ हार्मोन ही की डिटेल्स क्यों बताई हैं, बाकी की डिटेल किधर है? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जो काम कर रहा है ACTH वो कहाँ है? TSH की डिटेल्स किधर है? लेकिन पॉइंट समझने की कोशिश करें। पॉइंट ये है कि TSH ने काम करना है थायरॉइड पे, तो जब थायरॉइड ग्लैंड करेंगे तो TSH का वर्किंग मैकेनिज्म आएगा। ठीक है, इसलिए अभी सारा डिस्कशन इस चैप्टर का बाकी का ग्रोथ हार्मोन का है। एंड देन वी विल जंप ऑन टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं, ओनली एक्सेप्ट द ग्रोथ हार्मोन, ऑल ऑफ देम वर्क ऑन सम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, अच्छा, ग्रोथ हार्मोन प्रमोट्स ग्रोथ बाय मैनी बॉडी टिश्यू।
Growth hormone, also called the somatotropic hormone, या somatotropin, these are all the synonymous names. It's a very small protein, only 191 amino acid, and the molecular weight of 22 kilodalton, या 22,005 dalton. It causes growth of almost all tissues of the body that are capable of growing. जिनमें ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ करता है उन तमाम टिश्यूज की, यानी इसका रिसेप्टर हर जगह है. It promotes increased size of the cells and increased mitosis with development of the greater number of cells and specific differentiation of certain types of cells such as bone growth cells and muscle cells. So basically अभी हमने डायग्राम भी ऊपर एक देखी थी, कहाँ है this one. So growth hormone is basically this growth hormone is going to the whole body. अब देखिए इसके सामने एक पूरी बॉडी बनी हुई है because it works on the whole body, not on a particular cell. Okay. Right, so figure 76.5 shows typical weight chart of two growing littermates rats. Rats का experiment है जिन्होंने बताया. One received daily injection of growth hormone and one did not receive growth hormone. This figure show marked enhancement of growth in the rat given the growth hormone. So इससे साबित होता है कि actually you see this one, इसको growth hormone के injections मिलते रहे तो इसमें growth होती रही, इसको नहीं मिले तो इसमें growth नहीं हुई. Hence proved कि growth hormone is important for growth. Okay? देखिए जितनी भी साइंस में हमारे पास हम कहते हैं ना एविडेंस मौजूद है, वो किसी न किसी स्टेज पर एनिमल्स में चेक किया जाता है, और एनिमल्स में चेक करने के बाद हम कहते हैं कि ओके ये हार्मोन ये काम करता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कि एक चूहे को ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगते रहे, एक को नहीं लगे, तो एज अ रिजल्ट देखा ही कि जिसको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगते गए उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो गई, और जिसको इंजेक्शन नहीं लगे उसमें ग्रोथ नहीं हुई. तो इससे ये एक बात कंफर्म होती है कि ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. ओके, नाउ ग्रोथ हार्मोन हैज सेवरल मेटाबॉलिक इफेक्ट्स. Aside from the general effect on the growth hormone has multiple effects. For example, increased rate of protein synthesis, because ज़ाहिर है जब growth होगी तो more protein is required ना. इसी तरह increased mobilization of fatty acid from the adipose tissue so that it can be used to liberate energy. Decreased rate of glucose utilization throughout the body so that glucose can be stored. Thus, in effect, growth hormone enhances body protein and decreases fat stores. So, more growth hormone, more lipolysis, and therefore decrease fat. Okay, and it also conserves carbohydrate. Glucose के metabolism को भी इस तरह से tweak करता है कि carbohydrate से energy ना मिले, fat से मिले. Growth hormone promotes protein deposition in tissues. Now, although the precise mechanism by which growth hormone increases the protein deposition are not fully understood. However, some mechanisms are known, उनके बारे में बात करते हैं. Enhancement of amino acid transport through cell membranes. Now, growth hormone directly enhances transport of most amino acid through the cell membrane to the interior of the cell. This increase in the amino acid concentration within the cell is presumed to be at least partly responsible for increased protein synthesis. So, what it does is कि अगर एक सेल ये है तो ग्रोथ हार्मोन इस रिसेप्टर पर अमीनो एसिड की एंट्री को बढ़ा देता है, सो दैट मोर एंड मोर अमीनो एसिड्स गेट इनटू द सेल एंड मेक मोर एंड मोर प्रोटीन. दिस इज वन थिंग दैट द ग्रोथ हार्मोन डज. द अदर थिंग व्हिच द ग्रोथ हार्मोन इज केपेबल ऑफ डूइंग इज इट इंक्रीजेस द आरएनए ट्रांसलेशन. अब आरएनए ट्रांसलेशन अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली प्रोटीन ज़्यादा बनेगी. नंबर 3, इंक्रीज न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए भी ज़्यादा बनता है. सो ये सारे इफेक्ट्स हैं ग्रोथ हार्मोन के, और इन सब का पर्पज एक है, to increase protein synthesis. That's what the job is. इन तमाम चीज़ों की description से यही बात साबित हो रही है. Okay? Then decrease catabolism of protein and amino acid. Obviously, it is trying to make protein, and when somebody is trying to make protein, then obviously it will not be destroying protein. तो protein synthesis चूँकि ये augment कर रहा है, help कर रहा है, तो definitely protein synthesis के होने की वजह से इट विल ओपोज प्रोटीन डेग्रेडेशन. तो ये तो नहीं हो सकता ना कि ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करवा रहा हो साथ में प्रोटीन डेग्रेडेशन भी करवा रहा हो. दैट्स नॉट पॉसिबल ना, है ना. सो व्हाट इज द समरी पॉइंट? ग्रोथ हार्मोन एनहांसेस ऑलमोस्ट ऑल फैसेट्स ऑफ अमीनो एसिड अपटेक and protein synthesis by the cells. The overall effect is increased protein synthesis. Okay, while at the same time it reduces the breakdown of the protein. Common sense की बात है ये. Okay. Now, growth hormone enhances fat utilization for energy. आपने कभी नोट किया है कि बच्चे, ये मैं बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात बता रहा हूँ, बच्चे बचपन में जो गबलू बबलू छोटे से प्याले से मुन्ने से बेबीज होते हैं,
जब वो बड़े होने लगते हैं, टीनेज की तरफ जाने लगते हैं, तो सडनली अक्सर बच्चों में ये देखा जाता है कि उनका वेट ड्रॉप होता है, वेट लूज होता है। क्यों? बिकॉज ग्रोथ के दरमियान जब वो टीनेज की तरफ जा रहे हैं, सो उनमें ग्रोथ हार्मोन का एक सर्ज आता है, सो देयर इज इंक्रीज इन द ग्रोथ हार्मोन रिलीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द ग्रोथ हार्मोन रिलीज उनकी बॉडी का जो फैट है वो डिग्रेड होता है, लाइपोलिसिस, एंड दे सडनली स्टार्ट अपीयरिंग वीक। तो हम कहते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है, बढ़ता हुआ बच्चा थोड़ा कमजोर होता है। सो दैट्स द रीजन, बिकॉज इट इज यूजिंग fats, lipolysis हो रही है। Growth hormone has a specific effect to cause release of fatty acid from the adipose tissue, therefore increases the concentration of fatty acid in the body fluids, and it utilizes the fatty acid for energy generation. Okay, the ability to growth hormone to promote fat utilization together with this protein anabolic effect causes increase in lean body mass. तो पतला हो जाएगा बंदा, थोड़ा दुबला हो जाएगा। Okay, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा बन रहा है, तो प्रोटीन बन रहा है तो बॉडी का मास तो गेन हो रहा है, लेकिन फैट कम हो रहा है, तो लीन बॉडी मास बढ़ेगा। ओके, कीटोजेनिक इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन। Under influence of excessive amount of growth hormone, fat mobilization from adipose tissue sometimes becomes so great that large quantities of acidoacetic acid are formed and the body gets into a state of ketosis because there is a lot of lipolysis under the influence of growth hormone. So sometimes this can happen, okay, ketone bodies formation. अच्छा, growth hormone also decreases the use of carbohydrate. देखिए, ओवरऑल अगर आप इसको समराइज करें ना, तो ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा रहा है, लाइपोलिसिस को इंक्रीज कर रहा है, और ग्लूकोज कंजम्पशन या कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन को कम कर रहा है। सो दीज आर द मेजर इफेक्ट्स। ओके, सो ग्रोथ हार्मोन इज मल्टीपल इफेक्ट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नंबर 1, डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक, इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लिवर। सो इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन होगी तो जाहिर है ग्लूकोज डेग्रेडेशन नहीं होगी, एंड इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन। Each of these changes result from growth hormone induced insulin resistance. अब although ये insulin release तो करवा रहा है, but the growth hormone is making a cell, if this is a cell, it makes the cell resistant to the action of insulin. So if it is resistant, no glucose will be entering and it will be going towards other routes such as liver to form more and more glycogen stores. Okay? Now this induced resistance to insulin attenuates the insulin's action to stimulate uptake of and utilization of glucose. So glucose is not used. For these reasons, अब होगा क्या? अब ये सेल है, इस सेल में ये बाहर पड़ा हुआ है ग्लूकोज और ये पड़ा हुआ है इंसुलिन। नॉर्मल सिनेरियो ये होता है कि इंसुलिन आके रिसेप्टर सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस कि जो सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर हो जाता है। लेकिन अब एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन कि चूंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस अब बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, सो इंसुलिन विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन द सेल एंड ग्लूकोज विल नॉट एंटर इनटू द सेल। और जब ग्लूकोज एंटर नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, which means it is diabetogenic. So it is very important point to understand. Okay. However, patients with acromegaly जिनमें बहुत सारा growth hormone होता है, they are usually lean with little visceral fat because lipolysis हुई हुई होती है, but they still have type 2 diabetes because of the growth hormone. Okay, because growth hormone क्या कर रहा है? इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं होगा, इसका मतलब ब्लड में बढ़ जाएगा। We do not know the precise mechanism by which growth hormone causes insulin resistance and decreased glucose utilization. However, growth hormone induced increase in lipolysis and blood concentration of fatty acids likely contribute to impairment of insulin. So, चूंकि ये lipolysis increase कर रहा है, fatty acid बढ़ रहा है, so that fatty acid is in part generating the resistance. Okay. Now, necessity of insulin and carbohydrate for the growth hormone promoting action on growth hormone. ये एक important point है। Growth hormone fails to cause the growth in animals that lack a pancreas, यानी इंसुलिन इंपॉर्टेंट है। सो अगर किसी सेल को ग्रो करवाना है तो ग्रोथ हार्मोन अकेला काम नहीं कर पाएगा उस पर। इट नीड्स हेल्प फ्रॉम पैंक्रियाज, फॉर एग्जांपल इट नीड हेल्प फ्रॉम इंसुलिन। तो ये मजे की बात जरा ये देखो कि जिस इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ये बढ़ा रहा है उसी इंसुलिन पे ये खुद डिपेंडेंट है ना, यानी इंसुलिन को काम नहीं करने दे रहा लेकिन इंसुलिन से काम ले रहा है अपना। Thus, adequate insulin activity and adequate availability of carbohydrate, they are necessary for growth hormone function. तो इस पूरी हेडिंग का टेक होम यही है। Now, growth hormone stimulates cartilage and bone growth. I mean, it does for the whole body. तो cartilage और bone cells पे भी करता है। Although growth hormone stimulates increased deposition of protein and increased growth in almost all tissues of the body, its obvious effect is on the skeletal system. इसी वजह से हाइट बढ़ती है बंदे की। This result from multiple effects of growth hormone on the bone
including increased deposition of protein by the chondrocyte and osteogenic cells that causes bone growth. Increased protein, ये point note किया आपने? ग्रोथ हार्मोन का काम है ना ज़्यादा प्रोटीन बनाना. इंक्रीज रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ दी सेल्स, सो सेल डिवीजन इज इंक्रीज्ड. अच्छा, सेल डिवीजन में भी प्रोटीन चाहिए होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो ज़्यादा करवाना ग्रोथ हार्मोन का काम है ही. देन a specific effect of converting chondrocytes into osteogenic cells. So this is not very well understood, but this also happens कि more and more bone cells are produced. As a result, there is increase in size of the bones. Growth hormone exert much of its effect through insulin-like growth factors. Now, ये हमने चैप्टर नंबर 75 में डिटेल में किया था कि कौन सा हार्मोन किस तरह काम करता है. सो ग्रोथ हार्मोन भी इंसुलिन ही तरह के रिसेप्टर्स यूज करता है. दे आर कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, सोमैटोमेटिन्स जिनको हम कहते हैं. ग्रोथ हार्मोन कॉजेज लिवर टू फॉर्म सेवरल स्मॉल प्रोटीन्स विच आर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर या IGFs या सोमैटोमेटिन्स, और ये फिर जाके सेल्स पे काम करते हैं. एटलीस्ट 4 IGFs हैव बीन आइसोलेटेड, और इनके नाम भी ऐसे ही हैं फिर IGF-1, IGF-2, IGF-3, IGF-4. ओके, चिल्ड्रन विद डेफिनेशन ऑफ IGF अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स नहीं बन रहे तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती. The pygmy people of Africa, for example, have very small stature due to congenital inability to synthesize IGF-1. So basically जो लिवर है, ये ग्रोथ हार्मोन लिवर पे, हर बॉडी के सेल पे एक्ट करता है, तो लिवर पे भी एक्ट करता है, और लिवर बदले में बनाता है ये प्रोटीन्स, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. एंड दीज ग्रोथ फैक्टर्स देन गो ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स एंड परफॉर्म. एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ दी है कि अगर IGF-1 नहीं होगा तो ग्रोथ ही नहीं होगी, दे विल बी शॉर्ट स्टैचर्ड. ओके, इस पूरे पैराग्राफ का यही टेक होम मैसेज है. Now, short duration of action of growth hormone but prolonged action of IGF-1. Now that is the beauty. यानी खुद ग्रोथ हार्मोन का अपना लाइफ स्पैन छोटा सा है, तो ये क्या करता है, एक ऐसी चीज बनवा देता है जो कि IGF कहलाते हैं, जिनका लाइफ स्पैन ज्यादा है, देयरफॉर वो काफी देर तक ग्रोथ के प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं. ओके, सो द ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ इज फिनिश्ड इन फ्यू मिनट्स, जबकि आप इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को देखें तो फ्यू आवर्स, 20 आवर्स, तो 20 आवर्स तक ग्रोथ का काम करवाएगा. Now, regulation of growth hormone secretion after adolescence, यानी adulthood के बाद growth hormone secretion decreases slowly with age, finally falling down to 25%. Obviously, आपने growth achieve कर ली ना, एक level तक पहुंच गए, तो उसके बाद फिर growth hormone की secretion कम हो जाती है. And very important to understand कि growth hormone is secreted in a pulsatile pattern, increasing and decreasing. तो ये ऐसे pulses में निकलता है यूं फिर आप, okay? और जो कि सही से पता भी नहीं है, देखें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता. सो दिस इज काइंड ऑफ पल्सेस, स्ट्रेनस एक्सरसाइज में बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, स्लीप में बढ़ रहा है. सो स्लीप इज, वो कहते हैं ना बच्चों को सोने दो, अच्छी नींद करने दो, सोने से ही उनकी नशोनुमा ग्रोथ अच्छी होती है, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन निकलता है. The precise mechanism that control the secretion of growth hormone are not fully understood. However, there are some conditions. For example, starvation, especially severe protein deficiency, is a stimulus for growth hormone release. तो बेसिकली भूखे अगर आप रह रहे हैं तो not a bad thing, because भूखा रहना is a stimulus for basically growth hormone release. Okay, hypoglycemia अगर शुगर कम है, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, ट्रॉमा, स्लीप, amino acids, particularly arginine अगर मौजूद है बॉडी में, ghrelin is a hormone which is secreted from the stomach before meals. All these are the stimuli for release of growth hormone. The normal concentration of growth hormone in plasma of an adult is this much, 1.6 to 3 nanograms per ml. बच्चों में ज़्यादा होता है, 6 nanogram, because बच्चों में ग्रोथ का फिनोमिना ज़्यादा है ना. These value may go up to as much as 50 nanograms. Okay, under acute conditions, hypoglycemia is far the most potent stimulator. Now these are all the stimulators which we have already talked about here in this paragraph. Okay, now हाइपोथैलेमिक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स एंड सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द ग्रोथ. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रोथ हार्मोन है इसके प्लस फैक्टर्स क्या हैं और इसके माइनस फैक्टर्स क्या हैं, कौन इसको स्टिमुलेट करता है, कौन इसको इनहिबिट करता है. सो फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन अब तक हमने किया है, देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन. मैंने बताया ना ऊपर अभी, ग्रेलिन है, स्लीप है, एक्सरसाइज है, स्टारवेशन है. वन कैन रेडिली अंडरस्टैंड दैट द परप्लेक्सिटी ऑफ फिजियोलॉजिस्ट एज दे अटेम्प्ट टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीएच सिक्रीशन. बड़ा यार फिलोसॉफिकल सा जुमला लिखा हुआ है. It is known actually that growth hormone secretion is controlled by two factors in the hypothalamus. They are growth hormone releasing hormones, so they are positive factors, and then there are growth hormone inhibitory hormones, so they are negative factors, and these are also called somatostatin. अब कौन ये पॉजिटिव फैक्टर्स रिलीज करवाता है, कौन नेगेटिव, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. परहैप्स इसका आंसर है नहीं अभी क्लैरिटी के साथ.
Neurons in the arcuate and the ventromedial nuclei of the hypothalamus secrete growth hormone releasing hormone. And this is the same area of the hypothalamus that is very sensitive to blood glucose. So if you have low blood glucose, this is stimulated and more growth hormone is released, because growth hormone glucose के level को up करता है. So see, everything is connected together. Okay? In a similar manner, the hypothalamic signals depicting emotion, stress, trauma can all affect hypothalamic control of the growth hormone secretion. In fact, experiments, well, I'm not going to talk about these experiments. Most of the control of growth hormone secretion is probably mediated through growth hormone releasing hormone rather than the inhibitory hormones. But anyways, both work. Growth hormone releasing hormone, growth hormone secretion by, ये stimulate करता है obviously, by attaching to the specific cell membrane receptor. And now you know how does cyclic AMP work. You are very well aware of it, okay? So I'm not going to go into the details of the mechanism of how growth hormone work and growth hormone releasing hormone work. In summary, that's an important point. Our knowledge of the regulation of growth hormone secretion is not sufficient. It's an important point. बहुत सारी चीजें मेडिसिन में पता नहीं है क्लैरिटी के साथ. Yet because of the extreme secretion of growth hormone during starvation and its important long-term effect to promote protein synthesis, tissue growth, repetition है. Bottom line ये है कि there is increased protein synthesis, there is increased glucose in the blood, there is increased lipolysis, okay? All these sort of things you should know, right? अब मुझे बात करनी है ये क्लिनिकल इफेक्ट्स में छोड़ रहा हूँ, gigantism and you know all these things which are associated with the either increase or decrease of the growth hormone, because that is something that we are going to discuss in pathology, okay? So let's leave it for pathology. That's an example showing acromegaly, increased growth hormone in a person. These are the facial changes you see, increased growth of the bone. But anyways, that is what we will cover in pathology. So now anterior pituitary is done. Basically anterior pituitary में से मैंने आपको बताया कि there are 6 different hormones which are released. One of them is growth hormone जो पूरी बॉडी पे काम करता है. बाकी जितने सारे हैं पांचों वो किसी न किसी ग्लैंड पे काम करते हैं. So जब थायराइड पढ़ेंगे तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ लेंगे. जब एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ेंगे तो ACTH पढ़ लेंगे. इस तरह, ठीक है? तो इस चैप्टर में इन्होंने सिर्फ ग्रोथ हार्मोन पे कमेंट किया है. आपको ग्रोथ हार्मोन के पॉजिटिव फैक्टर्स और नेगेटिव फैक्टर्स पता होने चाहिए. That's important for your examinations, okay? Now let's talk about the posterior pituitary. कि posterior pituitary से क्या निकलता है, उसका hypothalamus के साथ क्या context है. So the posterior pituitary gland is also known as neurohypophysis because neurologically ये neural tissue से develop हुआ है और इसमें जो सारा system भी है वो axons पे depend करता है. मैंने आपको बताया ना कि यहाँ hypothalamus होगा, इसमें cell bodies होंगी और ये जो axon है वो travel करेगा pituitary stalk में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके अपने हार्मोन्स रिलीज करेगा. सो बिकॉज सारा न्यूरल सिस्टम है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड न्यूरोहाइपोफिसिस. इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ द ग्लायल सेल्स एंड द ग्लायल सेल्स हियर आर कॉल्ड पिट्यूसाइट्स. द पिट्यूसाइट्स एक्चुअली सीक्रेटिंग हार्मोन वाले सेल नहीं हैं. दे डू नॉट सीक्रेट हार्मोन्स, दे आर सिंपली देयर फॉर द सपोर्ट स्ट्रक्चर. और जो सिक्रीशंस हैं वो बेसिकली नर्व एंडिंग से हो रही हैं. उन नर्व एंडिंग से जो आ रहे हैं कहाँ से? हाइपोथैलेमस से. और हाइपोथैलेमस में उनकी सेल बॉडीज हैं. तो सेल बॉडीज भी दो तरह के जो है ना सेल के ग्रुप बनाती हैं. वन इज कॉल्ड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, वन इज कॉल्ड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. नाउ उनकी जो न्यूरॉन्स की एक्सॉन्स हैं दे पास टू द स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक से गुजरते हैं एंड देन दे एंटर इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी और दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं जैसा कि इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था. वन इज कॉल्ड वैसोप्रेसिन एंड द अदर वन इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन. नाउ वैसोप्रेसिन का हो या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का हो एक ही बात है. अभी इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है कि ये क्या काम करते हैं. इफ द पिट्यूटरी स्टॉक इज कट above the pituitary gland but the entire hypothalamus is left intact, the posterior pituitary hormones continue to be secreted normally after transient decrease for few days. Then they are secreted but the cut end of the fibers within the hypothalamus and not at the nerve endings. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझाता हूँ अभी एक डायग्राम पे. The reason for this is that the hormones are mainly synthesized basically in the hypothalamus and they are transported by the neurophysins which are the carrier proteins. क्या बात कर रहे हैं यार, बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने. मैं आपको ना दोबारा उस डायग्राम पे लेके चलता हूँ जो इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई थी. चलो इस डायग्राम पे दिखा देता हूँ. दिस इज द हाइपोथैलेमस, दिस इज द पिट्यूटरी स्टॉक, here is the anterior pituitary, this is the posterior pituitary. ठीक है. अब अगर मैं होता देखो ये कि यहाँ पे जो न्यूरोनल सेल्स है ना, ये दिस इज द सेल बॉडी और ये उस सेल बॉडी में हार्मोन सिंथेसाइज होगा और वो न्यूरॉन के जरिए पिट्यूटरी स्टॉक में से होता हुआ यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके रिलीज करेगा. सो बात ये हो रही है कि अगर इस पिट्यूटरी स्टॉक को काट दें इस तरह तो
पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी का कंट्रोल अब खत्म हो गया है हाइपोथैलेमस के साथ, और ये सेल्स अब क्या सीक्रेट करेंगे क्या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो कोई ऐसा सेल था ही नहीं जो कोई हार्मोन बना के रिलीज कर रहा हो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो जो हार्मोन रिलीज हो रहा था वो ऊपर से आ रहा था ना। अब अगर आप यहाँ पे काट दोगे तब भी ऊपर सेल बॉडी में यहाँ वो हार्मोन बनेगा, बन के यहाँ तक आएगा और यहाँ से ब्लड में रिलीज हो जाएगा, तो ब्लड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली रहेगी। दैट्स द पॉइंट। सो इवन इफ यू कट द स्टॉक, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द सिक्रेशन of the hormones of the pituitary, posterior pituitary. Okay, now antidiuretic hormone is formed primarily in the supraoptic nucleus of the hypothalamus obviously, and oxytocin is produced in the paraventricular nucleus. So अगर ये hypothalamus है और ये posterior pituitary है, तो hypothalamus में सेल बॉडीज के दो ग्रुप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं supraoptic nucleus, यहाँ पे सेल बॉडीज बनाती हैं क्या चीज, ADH, और दूसरा ग्रुप कहलाता है पैरावेंट्रिकुलर। ये क्या चीज बनाती है, ऑक्सीटोसिन, और वो फिर न्यूरॉन के जरिए, एक्सॉन के जरिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचता है। सो ये आपको याद रखना है कौन से न्यूक्लियस में क्या बनता है। When nerve impulses are transmitted down along the fiber of the supraoptic and the paraventricular nuclei, then those hormones get down to the posterior pituitary and are released by the exocytosis. Simple stuff है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एंटी-डायूरेटिक हार्मोन, नाम से जाहिर है कि ये डायूरेसिस नहीं करवाएगा, यानी यूरिन फॉर्मेशन को स्टॉप करेगा। और अगर यूरिन फॉर्मेशन को स्टॉप करेगा तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि बॉडी में वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, बॉडी में वाटर रिटेन होगा। सो इंजेक्शंस ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ ADH सच एज 2 नैनोग्राम्स ओनली, इतना कम AD अगर आप यूज करते हैं, दैट्स सच अ स्मॉल अमाउंट, इट कैन कॉज डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ वाटर बाय द किडनी। एंटी-डायरेटिक इफेक्ट इसको हम कहते हैं, इसीलिए तो इसका नाम है एंटी-डायरेटिक हार्मोन। सो दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ एंटी-डायरेटिक हार्मोन इज। तो वाटर नहीं जाएगा यूरिन में, and also causes extreme dilution of the urine. No, I left something. That is the antidiuretic effect. Briefly, in absence of ADH, if there is no ADH, then a lot of water will be released, और उस condition में diluted urine निकलेगी, so known as central diabetes insipidus. When there is no ADH, so more water will be released. Okay. Now, without ADH, the luminal membrane of the tubular epithelium cell of the collecting duct are almost impermeable to water, so water is not absorbed and it is secreted. तो ये सिंपल चीजें हमें पता है, ये बात पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एंटी डायूरेटिक अगर नहीं होगा हार्मोन तो डायूरेसिस ज्यादा होगी, यानी पानी ज्यादा रिलीज होगा यूरिन में। नाउ रेगुलेशन ऑफ द ADH इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर, नाउ बॉडी इज रेगुलेटेड ना। अगर बॉडी में, इफ दिस इज मी, और मेरी बॉडी में देयर इज हाई ऑस्मोलैरिटी, इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी में पानी कम हो गया एंड आई नीड मोर वाटर, सो किडनी में पानी में बाहर निकालूंगा या रीअब्सॉर्ब करूंगा, बाहर तो बिल्कुल नहीं निकालूंगा, रीअब्सॉर्ब करूंगा। सो अगर हाई ऑस्मोलैरिटी है इन द ब्लड, देन ADH इज रिलीज्ड एंड मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। ओके, सो दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ दिस होल पैराग्राफ, कि if there is, when there is a concentrated electrolyte, so high osmolarity in the blood, then ADH is released in the supraoptic and the paraventricular nuclei से ये निकलना शुरू हो जाता है, immediately transmit the impulses into the posterior pituitary to release large quantities of ADH into the blood as high as 20 times the normal, so that kidney पे जाके वो काम करे, पानी reabsorb हो, osmolarity set हो। In or near the hypothalamus are modified neurons called the osmoreceptors. So hypothalamus can also sense the osmolarity. If osmolarity is high, it releases ADH, that sort of thing. Okay. Regardless of the mechanism, the concentrated body fluid stimulate those receptor. Concentrated body fluid का मतलब है high osmolarity. If there is high osmolarity, ADH will be released. That's the very powerful stimulant for the release of ADH. Okay. Now, low blood volume and low blood pressure also stimulate ADH, and that should actually make sense to you. कि अगर blood pressure कम हो गया है तो बॉडी को तो ऐसे लगेगा ना कि पानी कम हो गया है, तो ADH रिलीज होगा, किडनी पे एक्ट करेगा, पानी रीअब्सॉर्ब होगा, that sort of thing. So whereas minute concentration of ADH causes increased water conservation by the kidney, higher concentration of ADH have a potent effect on the constricting arterioles as well. For this reason, ADH is also called vasopressin, because it can press upon the blood vessel and constrict them. One of the stimuli for causing intense ADH secretion is decreased blood volume, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि पानी कम हो गया है। ठीक है। Now, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दो चीजें यार। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है बेसिकली, तो यूट्रस की अगर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो बेबी बाहर डिलीवरी,
और अगर जाकर कि निपल्स और मेमरी डक्ट्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो मिल्क बाहर निकलेगा. सो दैट्स व्हाट इट इज. ऑक्सीटोसिस कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस. सो ऑक्सीटोसिन goes onto the uterus, contract the uterus smooth muscles and helps in the birth of the baby. Okay. In a hypophysiectomized animal, the duration of the labor is prolonged क्योंकि there is no oxytocin. अगर आप hypophysis को काट दें, पिट्यूटरी को काट के बाहर फेंक दें, तो ऑक्सीटोसिन नहीं है, लेबर का प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा. ओके. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन द प्लाज्मा इंक्रीजेस ड्यूरिंग लेबर. ठीक है, इस पूरी हेडिंग में बात यही हो रही है कि ऑक्सीटोसिन लेबर में हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट. सिंपल स्टफ. एपिथेलियल सेल मायोएपिथेलियल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और मिल्क निकलता है. तो बच्चा सिर्फ पैदा करवाने में नहीं, बच्चे की फीडिंग में भी इंपॉर्टेंट है. ओके. सो that's all that you need to know about this chapter. It's done. Chapter number 76. अपना ख्याल रखें आप लोग सब. पढ़ते रहें, लोगों को पढ़ाते रहें, वीडियोस शेयर करते रहें and try to help humanity. Okay? मेरी सारी एफर्ट्स का पर्पज़ ये है कि आप लोग अच्छी सी मेडिसिन सीखें, तमाम सब्जेक्ट्स में मास्टर हो जाएं. मैं बाज़ औक़ात बिजी मेरा होता है बहुत ज़्यादा शेड्यूल, बट आई ट्राई टू अपलोड 1 lecture a day on daily basis. Now for so many months I am doing this just for you guys. Okay, so please share the videos with your colleagues और अपना ख्याल रखें. एंड आपसे मुलाकात होगी अब किसी और वीडियो में बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिए.